Hello student, how are you? Fine? Okay. Today I am discuss with you. Last class we had discussed what is accounting. Today I discuss with you what is bookkeeping. Bookkeeping is a process. When we consider about the bookkeeping, record of the business transactions in the systematic manner in the book of account is called bookkeeping. That means record of business transactions in the systematic manner in the book of the accounts. That process is called bookkeeping. किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को अकाउंटिंग बुक में लिखने का जो तरीका है या जो प्रोसेस है, जो सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग टू जब हम अकाउंटिंग के बुक में उसको मेंटेन करते हैं तो यह प्रोसेस क्या कहलाता है, यह मेथोडोलॉजी क्या कहलाता है, यह बुककीपिंग कहलाता है. इट इज़ द मेनली कनेक्टेड विथ द मेंटेनिंग ऑफ द बुक ऑफ अकाउंट्स. इट इज़ बेसिकली मेन functions of the bookkeeping to maintain the book of the account. It included the identifications of the financial transactions, measuring and the transactions in the term of the money, recording these transactions and classifying them into ledgers. Bookkeeping is what is the work of the bookkeeping? It's identify the financial transactions. What is the work? It identify the financial transactions and the measuring these transactions in the term of the money. All the financial transactions which are in the terms of the money. You know that financial transactions is already in the terms of the money. So bookkeeping find out the financial transactions and maintain in the book, recording these transactions and classifying them into the ledger, recording in the journal and recording in the ledger. So classifying the transactions and recording the transactions is the main work of the bookkeeping. But might be slow. Accounting and the bookkeeping have the same work, but there is some difference between the accountancy and the bookkeeping. When we consider bookkeeping according to the age table, bookkeeping is the art of the recording the financial transactions of a business in the mathematical and the methodical manner so that the information on any points in the related to them may be quickly are called bookkeeping. So when we comparison between the bookkeeping and accountancy, there is no more difference between we find out, but there is some difference between the bookkeeping and accounting. Let us try to understand the difference of the bookkeeping and accountancy. The difference of the bookkeeping and accountancy: bookkeeping maintained by journal. Bookkeeping is maintained by junior staff. Just like बिगिनिंग लेवल पे जो स्टाफ्स होते हैं या कह सकते हैं कि रफ वर्क करने के लिए जिस स्टाफ्स को रखा जाता है, बुक कीपिंग जो है उनके द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है. अकाउंटेंसी इज द मेंटेन बाय द सीनियर स्टाफ. जस्ट लाइक अकाउंटेंट, ही आल्सो मेंटेन द बुक्स ऑफ रिकॉर्ड. व्हेन द बुक कीपिंग मेंटेन द जूनियर स्टाफ, बुक कीपिंग्स में जो रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं, पर्पस तो दोनों का एक ही होता है, क्लासिफिकेशन होता है और आइडेंटिफिकेशन होता है. लेकिन जब इसको जूनियर स्टाफ के थ्रू मेंटेन किया जाता है तो ये बुक कीपिंग के का कार्य कहलाता है. लेकिन अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है या अकाउंट्स के नॉलेज वाले लोग जब इसको करते हैं तो ये क्या कहलाता है, अकाउंटेंसी कहलाता है. बुक कीपिंग इज द प्राइमरी स्टेज. हम कह सकते हैं कि जैसे बहुत सारे कस्टमर्स हैं, फर्स्ट एंट्री करना हो तो इस समय बुक कीपिंग कहलाता है.
प्राइमरी स्टेज पे जब हम बहुत ज़्यादा डीपली बुक ऑफ अकाउंट नहीं बना रहे हो, रफ वर्क कर रहे हो और सिर्फ अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे हो, काम चलाओ रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हो, तो ये क्या कहलाता है, बुक कीपिंग कहलाता है। क्योंकि इसी रिकॉर्ड के थ्रू हम क्या करते हैं कि मेजर रिकॉर्ड्स तैयार करते हैं, और अकाउंटेंसी इज़ द सेकेंडरी स्टेज। तो रफ वर्क करने के लिए हम लोग बुक कीपिंग करते हैं, और मेजर वर्क्स करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटेंसी करते हैं। इट इज़ द कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग ऑफ डे टू डे ट्रांजेक्शन्स। देखिए, अब बुक कीपिंग्स का उद्देश्य क्या है, हर दिन के ट्रांजेक्शन्स को, जैसे जनरल में हम एंट्री करते हैं प्रतिदिन, ऑल टू ट्रांजेक्शन्स पर डे मेंटेन करने के लिए हम लोग बुक कीपिंग करते हैं। जब हम प्रतिदिन हर दिन के ट्रांजेक्शन्स को अकाउंट्स में को किसी बुक में मेंटेन करते हैं, तो ये प्रोसेस बुक कीपिंग कहलाता है। इट इज़ द बेस ऑफ ऑन द बुक कीपिंग। और बेसिकली इसी इंफॉर्मेशंस को यूज कर कर जो है अकाउंटेंट जो है वो लेसेस में क्लासिफिकेशंस या कह सकते हैं कि आइडेंटिफिकेशंस करता है, और उसके थ्रू जो है वो उसको लिखता है। तो हम कह सकते हैं कि बुक कीपिंग जो होता है वो बेसिक स्ट्रक्चर होता है अकाउंटिंग बुक का, और अकाउंटिंग क्या करता है कि बुक कीपिंग की मदद से, बेसिक स्ट्रक्चर्स की मदद से अपने बुक ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करता है। तरह की नेक्स्ट टॉपिक इज यूजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन कौन यूज करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, जब हम इसके विषय में बात करेंगे तो देयर इज टू टाइप ऑफ द यूज़र ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्योंकि अकाउंटिंग के थ्रू जब हम बुक ऑफ अकाउंट प्रिपेयर कर लिए, तो इसमें दो तरह के लोग जो है इसके हमको बेसिकली यूजर्स दिखते हैं। एक है इंटरनल यूजर और दूसरा है एक्सटर्नल यूजर। हु आर द इंटरनल यूजर्स? When we consider the internal users, that means the internal user is only who are owner of the business। जो बिजनेस का ऑनर है उसको हम कह सकते हैं कि वो इंटरनल यूजर है। शेयर होल्डर, जिसने अपने पैसे लगाए हैं बिजनेस में और उसको ये जानना है कि टाइम टू टाइम बिजनेस में कितने प्रॉफिट्स हो रहे हैं, क्या हो रहा है, बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा चल रहा है, बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है। और इंटरनल यूजर्स और भी हैं। इन्वेस्टर, जो बिजनेस में पैसा लगाता है, पर्सन्स हु इन्वेस्ट द कैपिटल इन द फॉर्म्स आर कॉल्ड इन्वेस्टर्स। सो वी आर ही नो कि व्हाट इज द सिचुएशंस ऑफ द बिजनेस। उसका एम्प्लॉइज इज अ पर्सन whose salary, remunerations and ETCs are maintained a business. If the business is the more profits, the employees give the bonus and the other things. So he know about the, so employee is the internal user of the business. And the management is the big person for a business, so he well know about the business. So management is the internal person who know about the financial statement. Next, external users, regulatory agencies, जो एजेंसीज बिजनेस को रेगुलेट करती हैं या जो बिजनेस को चलाते हैं, जैसे सेबी वगैरह जो संस्थाएं हैं, इनके एक्सटर्नल यूजर्स हैं। लेबर यूनियन, ये लेबर यूनियन भी एक्सटर्नल यूजर हैं, क्योंकि इनके थ्रू ये एम्प्लॉयज़ के बारे में जानते हैं और इनके लिए जानना जरूरी है कि बिजनेस में सही प्रॉफिट है या लॉस हो रहा है या नहीं। अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट एंड लॉस जो एम्प्लॉयज़ को सैलरी वेजेस या रेमुनरेशन से वो पेड हो रहा नहीं, इसलिए लेबर यूनियन भी जो है एक्सटर्नल। स्टॉक एक्सचेंज भी आपके बढ़ते घटते प्रॉफिट्स के अकॉर्डिंग टू जो है वो आपके स्टॉक्स के रेट्स को डिसाइड करता है, इसलिए स्टॉक एक्सचेंज भी जो है क्या है, एक्सटर्नल। एंड पब्लिक एंड अदर्स, publics as a public, when we consider the external users, public watch now, business is going to the profit or loss. When business going to the profits, we purchase the share, so that information is the important for the public. So there is a two types of the user of the financial statement, पहला है internal और दूसरा है external user. Okay, thank you. Next video we talking to the next topic. Take care, be safe in your home. Thank you.